Hello everyone, this is today the Hindu newspaper analysis session for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss only four issues. The first issue is related to G20 summit in South Africa. Second issue is what is the Meghdado Dam project dispute. Third issue is how is AI going to be regulated in India. And fourth issue is technological interventions in Manrega scheme. So let's discuss all the issues in detail. In this lecture, we will discuss about G20 summit in South Africa. Why news? The 2025 G20 summit is the 20th meeting of the G20 heads of state and government, held on November 22-23, 2025 in Johannesburg, South Africa. 2025 G20 समिट जो हो रहा है वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी के अंदर हो रहा है। G20 का ये 20th मीटिंग है। This is the first G20 summit to be hosted on the African continent, which focused heavily on the priorities of the global south. ये G20 का फर्स्ट समिट है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होस्ट किया जा रहा है और यही वजह है कि ग्लोबल साउथ से रिलेटेड इश्यूज को प्रायोरिटी दी जा रही है इस समिट के अंदर। However, the summit was boycotted by the US, which did not send a leader to the event due to tense ties with the South Africa. यूएस के द्वारा इस समिट का बॉयकॉट किया गया है बिकॉज साउथ अफ्रीका के साथ यूएस के रिलेशंस बैलेंस नहीं चल रहे हैं। की डिटेल ऑफ 2025 G20 समिट। G20 समिट 2025 के की डिटेल क्या है? होस्ट कंट्री एंड सिटी साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग। थीम मोटो सॉलिडरिटी इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सिग्निफिकेंट, it is the first G20 summit hosted by an African nation after the African Union became the permanent member during the 2023 New Delhi summit. अफ्रीकन यूनियन 2023 का जो न्यू दिल्ली में G20 समिट हुआ था उस टाइम के ड्यूरिंग परमानेंट मेंबर बना था और उसके बाद G20 का ये समिट फर्स्ट समिट है जो अफ्रीकन नेशन के अंदर हेल्ड किया गया है। It also concluded an unprecedented G20 troika of three consecutive global south countries as president: India 2023, Brazil 2024, South Africa 2025, offering a sustained opportunity to advance developing country priorities. लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू G20 का जो प्रेसिडेंसी रहा है वो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के पास ही रहा है। सच है, इंडिया का 2023 में प्रेसिडेंसी रहा, ब्राज़ील 2024, साउथ अफ्रीका 2025। G20 ट्रोइका फॉर 2025, ब्राज़ील पास्ट, साउथ अफ्रीका करंट एंड यूनाइटेड स्टेट्स कमिंग इनकमिंग 2026। प्रेजेंट में जो G20 समिट हेल्ड किया गया है, प्रेसिडेंसी किया गया है, वो साउथ अफ्रीका के द्वारा किया गया है, इससे पहले ब्राज़ील के द्वारा और नेक्स्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स में इसका प्रेसिडेंसी या फिर समिट होगा। ये पूरा जो सिस्टम होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो प्रेसिडेंसी जिन कंट्रीज के पास होगा, ये पूरा प्रोसेस को हम ट्रोइका के नाम से जानते हैं। मेजर एजेंडा प्रायोरिटीज एंड आउटकम। G20 के मेजर एजेंडा इस ईयर क्या रहे हैं और क्या-क्या एजेंडेस को प्रायोरिटी दी गई है, उसके क्या-क्या आउटकम्स रहे हैं। तो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन included 122 point declaration focused on advancing global equity, multilateral reform and sustainable development। 122 पॉइंट का जो डिक्लेरेशन रहा है G20 2025 का, मेरे 3 एरियाज में फोकस रहा है। ग्लोबल इक्विटी को एडवांस करना, मल्टीलैटरल रिफॉर्म पर फोकस करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना। की एरियाज ऑफ डिस्कशन क्या-क्या रहे हैं? एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्टिंग स्मॉल होल्डर फार्मर्स, improving debt relief mechanism and increasing transparency for low income countries, scaling of climate finance and promoting a just energy transition, reforming international financial institutions to better represent the global south, and promoting inclusive industrialization and a critical mineral value chain within Africa। The declaration also called for ceasefire in conflict zone। ये कुछ पॉइंट रहे हैं जिन पर important discussions किए गए हैं। Previous, current and upcoming G20 summits। Current G20 summit 2025। The G20 Leaders Summit is taking place on November 20 to 23, 2025 in Johannesburg, South Africa। South Africa hold the G20 presidency from December 1, 2024 to November 30, 2025।
Previous 2024 summit. The G20 summit was held on November 18, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. Upcoming G20 summit of 2026. The next G20 summit is scheduled for December 14, 15, 2026 in Miami, US. नेक्स्ट G20 समिट जो होगा वो यूएस के अंदर होगा। की इन्फॉर्मेशन अबाउट G20। G20 से रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन क्या है? The G20 Group of 20 is the premier forum for international economic cooperation, playing a crucial role in shaping the global architecture and governance on major international economic issues. G20 इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक प्रीमियर फॉर्म है जो कि ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस को शेपिंग करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज से रिलेटेड ये एक रिलायबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस प्रोवाइड करता है। एस्टेब्लिश्ड इन 1999, मेंबरशिप 19 मेंबर्स एंड 2 रीजनल बॉडीज, द यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। टोटल 19 मेंबर हैं G20 के अंदर एंड साथ ही 2 रीजनल बॉडीज, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन इसके मेंबर हैं। समिट्स समिट्स जो हेल्ड होता है इसका ईयरली होता है ऑन रोटेशन बेसिस। G20 began as a forum for finance ministers and central bank governors and was elevated to a learners leaders summit in 2008। स्टार्टिंग में G20 समिट्स जो हुआ करते थे उसमें ओनली फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर का ही मीटिंग हुआ करता था, बट 2008 से इसमें लीडर्स भी इंक्लूड होने लगे। Significance: G20 members represent a large portion of a global economy and population. Functioning: The G20 lack a permanent secretariat and has an annual rotating presidency. G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है एंड एनुअली रोटेटिंग बेस पर इसका प्रेसिडेंसी किया जाता है। इट्स वर्क इज स्प्लिट इनटू द फाइनेंस ट्रैक एंड द शेरपा ट्रैक। इसका जो वर्क होता है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है, फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। India's G20 presidency of 2022-2023. India held the G20 presidency from December 1, 2022 to November 30, 2023। इंडिया ने G20 का प्रेसिडेंसी December 1, 2022 से November 30, 2023 तक किया था, होस्टिंग द G20 समिट इन न्यू दिल्ली इन सितंबर 2023। न्यू दिल्ली में 2023 सितंबर मंथ में इंडिया ने G20 का समिट होस्ट किया था। थीम वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये उस टाइम का थीम था। की प्रायोरिटीज: इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड वुमेन लीड डेवलपमेंट, ये कुछ की प्रायोरिटीज रही थी इंडिया की। मेजर आउटकम्स ऑफ द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन: इंडिया ने जो G20 का प्रेसिडेंसी किया था उसके कुछ मेजर आउटकम्स क्या क्या रहे? अफ्रीकन यूनियंस परमानेंट मेंबरशिप, अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। द लॉन्च ऑफ द ग्लोबल बायोफिल अलायंस का लॉन्च किया गया था। द प्रपोजल फॉर द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रपोजल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंडियन प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग ही किया गया था। How digital intervention in Manrega scheme affect workers of Manrega? Are eKYC norms excluding Manrega workers? Why news? Nearly 27 lakh workers' names were removed from the Manrega database only in 1 month between October 10 and November 14. October 10 and November 14, 1 month के अंदर about 27 lakh मनरेगा वर्कर्स का नेम मनरेगा स्कीम से डिलीट किया गया है। This is due to government push to conduct eKYC, an electronic know your customer process for all workers to weed out ineligible beneficiaries। 27 लाख वर्कर्स के नाम इसलिए डिलीट किए गए हैं क्योंकि eKYC मैंडेटरी कर दिया गया है। बहुत सारे फार्मर्स के पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनका eKYC कंप्लीट नहीं हो पाता है और इसलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा नेम डिलीट किए गए हैं। इट इज टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन पीपल्स लीगल राइट टू वर्क मानने का, ये एक तरीके से पीपल के लीगल राइट पर एक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। मनरेगा कवर 26 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर अक्रॉस 2.69 लाख ग्राम पंचायत। मनरेगा के अंदर अबाउट 2.69 लाख ग्राम पंचायत के
26 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द वर्क फोर्स फॉर मनरेगा प्रोजेक्ट। मनरेगा प्रोजेक्ट के अंदर वुमेन का अगर बात की जाए तो 50% से ज़्यादा वर्क फोर्स वुमेन का है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 द गवर्नमेंट एलोकेटेड रुपीज 86,000 करोड़ फॉर मनरेगा। इस ईयर गवर्नमेंट का जो बजट रहा है मनरेगा स्कीम के लिए वो 86,000 करोड़ रुपीज रहा है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन पीपल्स लीगल राइट टू वर्क मनरेगा। मनरेगा के अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इंक्रीज हो रहा है। नंबर वन, प्लेइंग फील्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। The objective of Manrega is not to offer a playing field for technological intervention, but to provide a socio-economically deprived household a sense of work security facilitated by the digital technology। मनरेगा का जो ऑब्जेक्टिव है वो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के लिए प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना नहीं है, बल्कि सोशो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हाउस होल्ड के लिए एक सेंस ऑफ वर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, जिसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू फैसिलिटेट किया जा सकता है। बट प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस के थ्रू एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराया जा रहा है। नंबर टू, कॉन्ट्री टू द आइडियलाइज्ड नोशन ऑफ मनरेगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस बढ़ रहे हैं ये मनरेगा के आइडियलाइज्ड नोशन के कॉन्ट्री है। वर्कर्स हैव बीन प्लेस्ड एट द मर्सी ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज कॉन्ट्री टू द आइडियलाइज्ड नोशन ऑफ मनरेगा। वर्कर्स को प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी की मर्जी पर छोड़ दिया गया है और ये मनरेगा का जो आइडियलाइज्ड नोशन था स्टार्टिंग में ये उसके कॉन्ट्री है। It seems that technology has taken a precedence. Employment security seems less a priority. ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी को प्रेसिडेंस यहाँ पर गिवन किया जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को लेस प्रायोरिटी गिवन किया जा रहा है। नंबर थ्री, लुक्स लाइक स्टेट सपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम। ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टेट सपोर्टेड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। जिस तरह से मनरेगा स्कीम के अंडर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बढ़ रहे हैं। The manner in which the ABPS Aadhaar-based payment system has been designed, structured, and deployed, it looks like a state-supported technological program instead of the technology being an enabler for the workers in the मनरेगा। जिस तरह से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को डिजाइन किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है, डिप्लॉयड किया गया है, ऐसा लग रहा है कि ये स्टेट सपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम है। जबकि इसको मनरेगा स्कीम में ओनली एक सपोर्टर के तौर पर वर्क करना चाहिए था। इट मीन्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ओनली एक सपोर्ट के तौर पर यूज किया जाना चाहिए था। नंबर फोर, द प्रायोरिटी हैज टू ऑलवेज रिमेन द वर्कर्स एंड दियर लाइवलीहुड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट का प्रायोरिटी वर्कर्स को उनका लाइवलीहुड सिक्योरिटी गिवन करना होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। In an era of increasing socio-economic inequality, intensifying uncertainty in the work, diminishing social security, and rural distress, technology can play a vital role, but it cannot be state favored। ये जो एरा चल रहा है ये सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी इसमें इंक्रीज हो रही है। वर्क में पीपल का अनसर्टेनिटी इंटेंसिफाई हो रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी डिमिनिश हो रहे हैं, एंड रूरल डिस्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस एरा में टेक्नोलॉजी एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है, बट स्टेट फेवर्ड ये नहीं होना चाहिए। What is मनरेगा? मनरेगा is a law passed by the Indian government in 2005 that guarantees the right to work to rural citizens of India। मनरेगा 2005 में पास किया गया एक लॉ है जिसके अंडर रूरल इंडियन सिटीजन्स को राइट टू वर्क की गारंटी गिवन की गई है। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट अस्योर अ मिनिमम ऑफ 100 days ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क टू एन एडल्ट मेंबर ऑफ एन एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड। इस स्कीम के अंडर एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड के लिए यहाँ पर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क 100 days का मिनिमम प्रोवाइड कराया जाता है। स्पेशली यहाँ पर गवर्नमेंट एश्योरेंस गिवन करती है कि एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड के अडल्ट मेंबर के लिए मिनिमम 100 days का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क प्रोवाइड कराया जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रूरल सिटीजन्स एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रूरल सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है।
व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ मनरेगा? मनरेगा के अंडर की प्रोविजंस क्या क्या हैं? नंबर वन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ द मनरेगा स्कीम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 years of age at the time of application, रूरल हाउस होल्ड, विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं अगर किसी पर्सन को मनरेगा स्कीम के अंडर बेनिफिट रिसीव करने हैं। नंबर टू, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, गारंटी 100 days of unskilled employment to all willing rural citizens at the government set minimum wage। कोई भी रूरल सिटीजन अगर अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टेकिंग करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम 100 days की गारंटी यहाँ पर वर्क करने की गिवन की गई है और इसके लिए गवर्नमेंट ही मिनिमम वेज सेट करती है। नंबर थ्री, unemployment allowance, if work is not given within 15 days the applicant is entitled to receive an unemployment allowance। अगर 15 days के अंदर गवर्नमेंट वर्क प्रोवाइड नहीं कराती है देन उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गिवन किया जाता है। नंबर हो सोशल ऑडिट, a social audit is a powerful tool for community participation, social transformation and government accountability। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए सोशल ऑडिट एक पावरफुल टूल है। मनरेगा सेक्शन 17 हैज मैंडेटेड अ सोशल ऑडिट ऑफ ऑल द वर्क एग्जीक्यूटेड अंडर द मनरेगा। मनरेगा एक्ट का सेक्शन 17 मनरेगा के अंडर जितना भी वर्क किया जाता है उसका सोशल ऑडिट मैंडेट करता है। इट मीन्स मनरेगा वर्क का सोशल ऑडिट यहाँ पर लीगली कराया जाता है। नंबर 5, प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियर रेसिडेंस, नियर रेसिडेंस से पीपल को यहाँ पर वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। द वर्क प्रोवाइडेड विद इन 5 kilometer रेडियस ऑफ द एप्लीकेंट्स विलेज, अ ट्रेवल अलाउंस प्रोवाइडेड फॉर द वर्क बियॉन्ड दिस रेडियस। वर्कर्स को विद इन 5 kilometer रेडियस के यहाँ पर वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। अगर इस लिमिट के बियॉन्ड वर्क प्रोवाइड कराया जाता है देन ट्रेवल अलाउंस वर्कर्स को इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 6, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, पंचायत राज institutions take the lead role in planning, implementing and monitoring the allocate and execute work। जो भी वर्क मनरेगा के अंडर किया जाता है उससे रिलेटेड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस अपना एक लीडिंग रोल प्ले करती हैं। ग्राम सभा आर गिवन द अथॉरिटी टू सजेस्ट वर्क। मनरेगा के अंडर कौन कौन से वर्क किए जाने चाहिए इससे रिलेटेड सजेशंस ग्राम सभा गिवन करती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड कंपेंसेशन। वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, मेडिकल फैसिलिटी एंड कंपेंसेशन प्रोवाइड करने में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। Number 7, payment are made on a weekly basis and cannot be delayed more than 15 days. Otherwise, compensation is provided for delays. वर्कर्स को वीकली बेसिस पर पेमेंट गिवन किए जाते हैं और पेमेंट को किसी भी कंडीशन में 15 डेज से ज़्यादा के लिए डिले नहीं किया जा सकता। अदरवाइज वर्कर्स को यहाँ पर पेमेंट गिवन करना होता है, कंपेंसेशन के तौर पर यहाँ पर पेमेंट करना होता है। नंबर 8, कंप्लेंट कैन बी मेड एंड मस्ट बी एड्रेस्ड विद इन 7 days। वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके रिगार्डिंग वो कंप्लेंट कर सकते हैं। 7 days के अंदर उनकी कंप्लेंट को एड्रेस किया जाएगा। हाउ हैज मनरेगा इवॉल्व ओवर द टाइम, मनरेगा ओवर द टाइम किस तरह से इवॉल्व हुआ? सिंस 2005 मनरेगा हैज इवॉल्व इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया। 2005 से ही मनरेगा स्कीम एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क करता रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए। डाटा शो दैट ऑन एनी गिवन डे सम 15 million people work under the program at 1.4 million sites। डाटा ये शो करते हैं कि मनरेगा स्कीम के अंडर किसी एक पर्टिकुलर डे 1.4 मिलियन साइट्स पर, इट मीन्स अबाउट 14 लाख साइट पर 15 मिलियन पीपल ने वर्क किया 1 day के अंदर। 15 मिलियन मीन्स अबाउट 1 करोड़ 50 लाख लोगों ने यहाँ पर वर्क किया एक दिन के अंदर। देयर हैज बीन a steady decline in the budget allocation for the scheme।
मनरेगा का बिफोर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ईयर बाय ईयर इसका जो बजट है वो डिक्लाइन हो रहा है। गवर्नमेंट कट द स्पेंडिंग टू, यहाँ पर ईयर वाइज दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने किस तरह से मनरेगा का बजट ईयर बाय ईयर डिक्लाइन किया है। ₹98,468 फॉर द ईयर 2021-22, ₹89,400 in 2022, ₹60,000 फॉर 2023। In more than 15 years of implementation, Manrega has generated more than 31 billion percentage of employment, and the government has spent over rupees 6.4 lakh crore on the demand-driven program. अभी तक मनरेगा स्कीम पर गवर्नमेंट ने अबाउट 6.4 लाख करोड़ रुपीज स्पेंड किए हैं। This scheme has introduced several technological tools to make the implementation more transparent and efficient, such as online registration, electronic fund transfer, and geotagging through mobile app. इस स्कीम के अंडर सेवरल टेक्नोलॉजिकल टूल भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं सो दैट मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट बनाया जा सके। कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल सच एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जियो टैगिंग थ्रू मोबाइल ऐप, यहाँ पर ये कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है इस स्कीम के अंडर। ऐसा माना जाता है कि अगर ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होंगे तो मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को ट्रांसपेरेंट किया जा एफिशिएंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब ऑनलाइन है, एंड फंड ट्रांसफ़र जो किए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाते हैं। मोबाइल ऐप के थ्रू सारे वर्क का यहाँ पर जियो टैगिंग किया जाता है। टू अचीव बेटर कन्वर्जेंस टू ऑफ रिसोर्स एंड एफर्ट्स, स्कीम हैज बीन इंटीग्रेटेड विद अदर प्रोग्राम। रिसोर्स एंड एफर्ट्स को बेटर तरीके से कन्वर्ज करने के लिए इस स्कीम को कुछ अदर प्रोग्राम के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है, सच एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान। इन सभी प्रोग्राम के साथ मनरेगा स्कीम को ऐड किया गया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनरेगा? मनरेगा का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, मनरेगा प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के पीपल के लिए पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मनरेगा प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। नंबर टू, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनरेगा हैज हेल्प टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेसिक सर्विसेज इन रूरल एरिया सच एज वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मनरेगा का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर बेसिक सर्विसेज सच एज वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नंबर दे हैव टू इम्प्रूव नेचुरल रिसोर्स बेस। रूरल पुअर के जो नेचुरल रिसोर्स बेस हैं उसको इम्प्रूव करने में मनरेगा ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, विच हैज हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्स बेस को अगर इम्प्रूव किया जाएगा रूरल एरियाज में, इससे इन्वायरमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर फॉर कंपेंसेटिंग इनकम लॉस इन स्टेट लाइक बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, मनरेगा हैव टू कंपेंसेट 20 to 80% ऑफ इनकम लॉस incurred because of कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन। कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से पीपल का जो इनकम लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने में मनरेगा स्कीम ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड एमपी स्टेट के अंदर। नंबर है प्रिवेंटिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन इंक्रीज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने में मनरेगा का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मनरेगा डिक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया बाय यूटिलाइजिंग द लेबर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लेबर को यूटिलाइज करके मनरेगा ने माइग्रेशन को जो कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ हुआ करता था उसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया है। नंबर 6, लाइवलीहुड। It improve the livelihood of the rural poor and create durable assets such as wells, pond, roads and canals. मनरेगा स्कीम ने ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स एंड कैनल्स क्रिएट करके रूरल पुअर पीपल की लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया है। नंबर 7, राइट बेस्ड अप्रोच।
Unlike previous employment guarantee scheme, Manrega aimed to combat chronic poverty through a right-based approach, giving citizens a legal right to work. प्रीवियस गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से डिफरेंट मनरेगा स्कीम ने क्रॉनिक पॉवर्टी से कॉम्बैट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है बिकॉज पीपल को अब राइट्स बेस्ड अप्रोच के अंडर लीगल राइट टू वर्क मिला हुआ है। टाइम टू टाइम इन्हें पेमेंट किया जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हुई है जिससे क्रॉनिक पॉवर्टी काफ़ी हद तक अब रिड्यूस हुई है। व्हाट आर इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या इशू जो हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं। नंबर वन, करप्शन। देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। मनरेगा स्कीम के अंडर कुछ करप्शन से रिलेटेड इंस्टेंसेस भी शो हुए हैं, पर्टिकुलरली फंड्स के एम्बेजलमेंट से रिलेटेड एंड रिकॉर्ड के मैनिपुलेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, एन आईएएस ऑफिसर इन झारखंड वाज एक्यूज्ड ऑफ करप्शन इन मनरेगा। झारखंड में एक आईएएस ऑफिसर को मनरेगा में करप्शन के लिए एक्यूज किया गया है। Number two, limited job opportunities. Provide only 100 days of employment per person per year, which may not be enough to meet the needs of all rural citizens. मनरेगा स्कीम के अंडर जो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी एक बिग इशू है बिकॉज पर पर्सन पर ईयर ओनली इसमें 100 डेज का वर्क प्रोवाइड कराया जाता है जो कि ऑल रूरल सिटीजन्स के नीड को मीट करने के लिए एनफ नहीं है। Number three, lack of awareness. Many rural citizens are not aware of their right under Manrega, and as a result, they do not take advantage of the benefit that Manrega offer. बहुत सारे पीपल हैं जो मनरेगा स्कीम से रिलेटेड अवेयर नहीं हैं और यही वजह है कि मनरेगा से होने वाले बेनिफिट या फिर एडवांटेज का वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। नंबर फोर, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। Bureaucratic delay and inefficiencies making it difficult for citizens to access benefit in a timely manner. कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड एफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से टाइमली मैनर में सिटीजन्स को बेनिफिट गिवन नहीं किए जा रहे हैं। नंबर फाइव, क्वालिटी ऑफ वर्क। मैनी critics argue that the quality of work carried out under Manrega is not productive and is not aligned to the local needs and priorities. ऐसा माना जाता है कि मनरेगा के अंडर जो भी वर्क कराया जाता है वो क्वालिटेटिव या प्रोडक्टिव वर्क नहीं है जिसकी वजह से लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज इसके साथ अलाइन नहीं हो पाती हैं। कुछ क्रिटिक ऐसा मानते हैं। नंबर से लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। Limited financial inclusion in the state such as Bihar is also a challenge for the proper implementation of the मनरेगा। मनरेगा के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बिफोर बिहार में कुछ चैलेंजेस हैं बिकॉज बिहार में फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी लिमिटेड है। व्हाट आर द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ मनरेगा। मनरेगा के पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या रहे हैं। नंबर वन, अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मनरेगा एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट रहा है। नंबर टू, लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर इंडियंस। पुअर इंडियंस के लिए ये एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी के तौर पर इसने वर्क किया है। नंबर थ्री, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, इम्प्रूव्ड वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी। मनरेगा स्कीम ने कुछ ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट किए हैं जिसके थ्रू वाटर सिक्योरिटी इम्प्रूव हुआ है, सॉइल कंजर्वेशन, हायर लैंड प्रोडक्टिविटी हुआ है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हाउस होल्ड थ्रू एन इंक्रीज इन द हाउस होल्ड इनकम। पीपल की हाउस होल्ड इनकम में इंक्रीज हुआ है और यही वजह है कि हाउस होल्ड पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई हुआ है। नंबर है एम्पावरमेंट ऑफ SC, ST एंड वुमेन। मनरेगा स्कीम ने SC, ST एंड वुमेन को एम्पावर किया है। व्हाट आर नेगेटिव आउटकम्स ऑफ मनरेगा। मनरेगा स्कीम के कुछ नेगेटिव आउटकम्स हैं सच एज नंबर वन, नो रेगुलर सोशल ऑडिट। यहाँ पर सोशल ऑडिट रेगुलर नहीं होता है। नंबर टू, लीकेज ऑफ फंड्स, फंड का लीकेज होता है। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजी का नेटवर्क इशूज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज फॉर जियो टैगिंग। जियो टैगिंग के लिए रूरल एंड रिमोट एरियाज में टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क रिलेटेड इशूज हैं। नंबर फोर, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेज। नंबर फाइव, लो वेज रेट। वेरियस रिफॉर्म दैट कैन मेक द मनरेगा प्रोग्राम सक्सेसफुल। वेरियस रिफॉर्म क्या क्या होने चाहिए मनरेगा के अंदर
जिसके थ्रू ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सके। नंबर ऑफ अर्बन मनरेगा, जिस तरह से रूरल पीपल के लिए मनरेगा एक्ट के अंदर प्रोविजन किए गए हैं, उसी तरह से अर्बन पीपल के लिए भी मनरेगा स्कीम को ब्रॉड किया जाना चाहिए। वन सजेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इज टू एक्सटेंड इट टू द अर्बन एरियाज। इसको अर्बन एरियाज तक एक्सटेंड करने की जरूरत है। दिस कैन हेल्प एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लो स्किल्ड वर्कर। मनरेगा स्कीम को अगर अर्बन एरिया के पीपल तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो इससे अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशूज हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है, एंड लो स्किल्ड वर्कर्स जो अर्बन एरियाज में हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। नंबर 2, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। Universal basic income can be a substitute for Manrega as it is more efficient and less leaky than current welfare scheme like Manrega। यहाँ पर मनरेगा स्कीम के सब्सटीट्यूशन के तौर पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के का सजेशन गिवन किया जाता है, बिकॉज मनरेगा स्कीम जो है ये उतना एफिशिएंट नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा लीकेज भी होता है। करंट वेलफेयर स्कीम जितनी भी हैं वो मोर एफिशिएंट नहीं है, लीकेज बहुत ज़्यादा होता है। बट यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक मनरेगा का ऐसा सब्सटीट्यूट हो सकता है जो कि मोर एफिशिएंट है, लेस लीकी है, और यहाँ पर बेटर तरीके से फंड का डेवोल्यूशन किया जा सकता है वर्कर्स तक। नंबर 3, कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा विद अदर स्कीम। अदर स्कीम के साथ मनरेगा को कन्वर्ज नहीं किया गया है, इसको किया जाना चाहिए। इट कैन हेल्प इंश्योर दैट मनरेगा प्रोजेक्ट आर अलाइंड विद द लार्जर गोल ऑफ दीज स्कीम एंड कैन ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर मनरेगा स्कीम को अदर प्रोग्राम के साथ अलाइन किया जाएगा तो इसके जो लार्जर गोल हैं उसको अचीव करने में हेल्प मिल सकता है, एंड प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव इसके अंडर किया जा सकता है। नंबर 4, इनोवेटिव मेजर्स। मनरेगा के अंडर कुछ इनोवेटिव मेजर्स टेकिंग करने की जरूरत है। अनदर सजेशन इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव मेजर्स। अब इनोवेटिव मेजर्स क्या क्या टेकिंग किए जा सकते हैं? यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज इसके अंदर किया जाना चाहिए। लिंकिंग मनरेगा विद द प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए मनरेगा स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के साथ ऐड किया जाना चाहिए। इन्वॉल्विंग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। मनरेगा प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। नंबर 5, सोशल ऑडिट टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा स्कीम। देयर इज अ नीड टू मैंडेटरी होल्ड सोशल ऑडिट एवरी 6 मंथ। ऐसा यहाँ पर सजेशन गिवन किया जाता है कि अगर मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को अगर इम्प्रूव करना है देन एवरी 6 मंथ में इसका सोशल ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए। अभी ये प्रेजेंट में मैंडेटरी नहीं है। नंबर 6, जॉब कार्ड। जॉब कार्ड से रिलेटेड कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, सच एज जॉब कार्ड शुड बी इशूड ओनली टू इंडिविजुअल हु आर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। जॉब कार्ड सिर्फ उन्हीं पीपल को, इट मीन्स एलिजिबल पीपल को यहाँ पर गिवन किए जाना चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल है, नॉट इलेक्टेड पीआरए रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मनरेगा ऑफिसर्स। बहुत सारे मनरेगा ऑफिशियल्स एंड इलेक्टेड पीआरआईज रिप्रेजेंटेटिव को भी यहाँ पर जॉब कार्ड गिवन कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज PYQ related to this article. Among the following who are eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2011। यहाँ पर कौन मनरेगा के अंडर एलिजिबल है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये स्टेटमेंट गिवन है। Adult member of only the scheduled caste and scheduled tribe household, this statement is wrong. Adult member of below poverty line household, this statement is also wrong. Adult member of household of all backward community, this is wrong. Adult member of any household, यहाँ पर any household के adult member को जॉब गिवन किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज डी। व्हाट इज कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट एंड मेघदातु डैम रो? The Meghdatu Dam project dispute is a conflict between Karnataka and Tamil Nadu over Karnataka's plan to build a reservoir on the Kaveri River.
मेघदातु डैम प्रोजेक्ट डिस्प्यूट कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बिटवीन एक कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज कर्नाटक कावेरी रिवर पर एक रिजर्वर बिल्ड करना चाहता है। तमिलनाडु oppose the project because it feared the dam will hold water, affect its water supply, and argue Karnataka cannot proceed without the consent of lower riparian state as required by law। तमिलनाडु ने इस प्रोजेक्ट का ओपोज किया है बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि अगर कर्नाटक एक रिजर्वर बिल्ड कर लेगा कावेरी रिवर पर, देन तमिलनाडु के लिए यहाँ पर वाटर सप्लाई एफर्ट हो सकती है। और कर्नाटक का यहाँ पर कहना है कि अ, तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटक विदाउट हिज कंसेंट इस तरह के डैम यहाँ पर प्रपोज नहीं कर सकता। Karnataka claimed the project is essential to meet the Bengaluru's growing drinking water needs and to regulate river flow, asserting it has the right to undertake the project। कर्नाटक ने यहाँ पर क्लेम किया है कि बेंगलुरु के अंदर ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ग्रो हो रही हैं, उसको मीट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही एसेंशियल है। और साथ ही रिवर फ्लो को रेगुलेट करना भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने का राइट मिला हुआ है। एनवायरमेंटल कंसर्न ऑल्सो एग्जिस्ट एज द प्रोजेक्ट वुड सबमर्ज पार्ट ऑफ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस प्रोजेक्ट के कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न भी हैं बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंडर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक बड़ा पार्ट यहाँ पर सबमर्ज हो सकता है। की पॉइंट्स ऑफ द डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट के की पॉइंट्स क्या क्या है? वाटर सप्लाई एंड यूजेज, वाटर सप्लाई एंड यूजेज से रिलेटेड की डिस्प्यूट क्या क्या है? तमिलनाडु कंसर्न, तमिलनाडु feared that an upstream reservoir will stop water flow, making it dependent on Karnataka to release its legally allocated share, especially during period of low rainfall। तमिलनाडु का जो फियर है वो ये है कि अगर अपस्ट्रीम रिजर्वर होगा तो इससे वाटर फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है और तमिलनाडु को यहाँ पर कर्नाटक के ऊपर वाटर के लिए डिपेंडेंस यहाँ पर इसकी बढ़ सकती है, स्पेशली लो रेनफॉल पीरियड के ड्यूरिंग। द प्रोजेक्ट इज सीन एज वायलेटिंग द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल डिसीजन एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच मैंडेड स्पेसिफिक फ्लोज। तमिलनाडु का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के डिसीजन एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है बिकॉज इनका जो जजमेंट है वो स्पेसिफिक फ्लो को यहाँ पर मैंडेट करता है। कर्नाटक से जस्टिफिकेशन, कर्नाटक स्टेट द प्रोजेक्ट इज क्रूशियल फॉर सिक्योरिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर बेंगलुरु एंड सराउंडिंग एरिया। कर्नाटक स्टेट ने यहाँ पर कहा है कि बेंगलुरु एंड सराउंडिंग एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर को सिक्योर करने के लिए ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लीगल एंड प्रोसीजनल आस्पेक्ट, लीगल एंड प्रोसीजनल आस्पेक्ट से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं? तमिलनाडु आर्गूमेंट, तमिलनाडु आर्ग्यू द प्रोजेक्ट इज इलीगल विदाउट इट्स मैंडेटरी कंसेंट एज पर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। तमिलनाडु ने आर्ग्यू किया है कि तमिलनाडु की कंसेंट के बिना ये प्रोजेक्ट इलीगल है बिकॉज ऐसा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर रिवर पर बनाना है तो रिवर फ्लोइंग स्टेट से पहले यहाँ पर कंसेंट मैंडेटरी होगा। कर्नाटक स्टेंस, कर्नाटक का क्या स्टेंस है? कर्नाटक said it has the right to proceed with the project, stating it will follow Supreme Court guidelines and the directives of the Kaveri Water Management Authority। कर्नाटक ने कहा है कि उसे इस प्रोजेक्ट पर प्रोसीड करने के लिए राइट मिला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस एंड CWMA की जो भी डायरेक्शंस हैं यहाँ पर वो कह रहा है कि उन्हें फॉलो कर रहा है। रिसेंट कोर्ट एक्शन, इन नवंबर 2025 द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड तमिलनाडु चैलेंज premature as the project's detailed project report was still under considered by the CWMA and Kaveri Water Regulation Committee। नवंबर 2025 यानी इस मंथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तमिलनाडु ने जो इस इशू को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्री मैच्योर बताया है बिकॉज इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो अभी CWMA एंड CWRC के अंडर कंसिडरेशन में है और जब तक यहाँ पर ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को टेकिंग नहीं किया जा सकता। Environmental impact concern, various environmental activists oppose the project due to its potential impact on the Kaveri Wildlife Sanctuary।
बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का अपोज किया है बिकॉज कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक बड़ा पार्ट इसके अंदर सबमर्ज हो सकता है एज द रिजर्वर वुड सबमर्ज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट थ्रेटनिंग वाइल्ड लाइफ। इससे वाइल्ड लाइफ के लिए एक बिग थ्रेट क्रिएट हो सकता है। कर्नाटक पर्सपेक्टिव, the project goal is to regulate water flow and prevent wastage, and Karnataka argue the project is within its right to develop the water reserve। कर्नाटक ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो गोल है वो वाटर फ्लो को रेगुलेट करना है एंड वाटर वेस्टेज को प्रिवेंट करना है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये भी आर्गुमेंट गिवन किया है कि उसे वाटर रिजर्व डेवलप करने का राइट मिला हुआ है, उसी के अंडर इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। The Interstate River Water Dispute Act 1956, Interstate Water River Dispute 1956 के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। The Interstate River Water Dispute Act 1956 is the primary legal framework in India to resolve dispute between states regarding the use, distribution and control of interstate river water। इंडिया में स्टेट के बिटवीन रिवर वाटर के यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल करने के लिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है सो दैट स्टेट के बिटवीन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। इट मीन्स वेरियस स्टेट के बिटवीन अगर वाटर शेयरिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो इन्हें सॉल्व करने के लिए इंडिया में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 अप्लाई होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 262, this article grant parliament the authority to legislate on the adjudication of inter-state river water dispute and can exclude the jurisdiction of court in such matter। आर्टिकल 262 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर गिवन की गई है, अथॉरिटी गिवन की गई है कि वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर को लेजिस्लेशन के थ्रू एडजुकेट कर सकता है और कोर्ट के इंटरवेंशन या जूरिसडिक्शन को यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकता है। इट मीन्स स्टेट के बिडवन अगर रिवर को लेकर कुछ इश्यूज हैं देन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही इसमें जूरिसडिक्शन के बेस पर वर्क करने, पार्लियामेंट चाहे तो इसके रिगार्डिंग लॉ मेकिंग भी कर सकती है। सेवंथ शेड्यूल, व्हाट इज प्राइमरली स्टेट सब्जेक्ट अंडर एंट्री 17 ऑफ द स्टेट लिस्ट। वाटर प्राइमरली एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 7 में इसको प्रोविजन किया गया है। However, entry 56 of the union list allow the union government to regulate inter-state river in the public interest। यूनियन लिस्ट की 56 की एंट्री में भी यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर अलाउ किया गया है कि वो इंटर स्टेट रिवर को यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट में रेगुलेट कर सकती है। इट मीन्स यहाँ पर स्टेट एंड यूनियन लिस्ट दोनों के अंडर ही यहाँ पर वाटर को ऐड किया गया है। की प्रोविजंस ऑफ ISRWD Act 1956, the act allow the central government to form an ad hoc water dispute tribunal if a state request resolution and negotiations fail। अगर दो स्टेट के बिटवीन किसी रिवर को लेकर नेगोशिएशन फेल हो जाते हैं और वो रेजोल्यूशन चाहते हैं देन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया गया है कि वो एड हॉक वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इस इशू के रिगार्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। दिस ट्राइब्यूनल कंपोज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस नॉमिनेटेड बाय द CJI take decisions that are final and binding once published in the official gazette। इस ट्राइब्यूनल के अंदर CJI के द्वारा नॉमिनेट किए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज होते हैं, इनका जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा एंड एक बार अगर इनका डिसीजन ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश हो जाता है देन वो जो डिसीजन है वो बाइंडिंग हो जाता है। नंबर 3, द एक्ट जनरली बार कोड फ्रॉम हियरिंग डिस्प्यूट रेफर टू अ ट्राइब्यूनल। कोई भी डिस्प्यूट अगर ट्राइब्यूनल के बिफोर रेफर किया गया है देन कोर्ट उससे रिलेटेड इंटरवेंशन नहीं कर सकती। इट मीन्स यहाँ पर कोर्ट को जनरली बार। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस 2025। हाउ इज AI गोइंग टू बी रेगुलेटेड इन इंडिया। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है।
Why news? On November 5, the Ministry of Electronics and Information Technology unveiled the India AI governance guidelines to regulating and promoting the use of artificial intelligence technology in Indian society. इंडियन सोसाइटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए प्रमोट करने के लिए नवंबर 5 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडियन एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं। द गाइडलाइंस वन ऑफ द मैनी स्टेप द गवर्नमेंट इज टेकिंग टू रेगुलेट एआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए मैनी स्टेप टेकिंग कर रही है। उसी में से एक स्टेप ये गाइडलाइन है। AI Impact Summit 2026 will be hosted by India in New Delhi. AI Impact Summit 2026 न्यू दिल्ली में नेक्स्ट ईयर हेल्ड किया जाएगा। करंट एआई लॉ इन इंडिया। इंडिया में करंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या लॉ हैं। इंडिया करंटली डज नॉट हैव अ डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ। इंडिया में प्रेजेंट में कोई भी डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ नहीं है। इंस्टेड एआई गवर्नेंस इज मैनेज्ड थ्रू अदर एग्जिस्टिंग एंड प्रोपोज्ड लीगल इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंट में इंडिया के अंदर एआई को वेरियस एग्जिस्टिंग एंड प्रोपोज्ड लीगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ पर गवर्न किया जाता है। Existing law such as the Information Technology Act 2000, the Digital Personal Data Protection Act 2023, and the Consumer Protection Act 2019 indirectly cover various aspects of AI use, such as data privacy, cyber security, and misinformation through deep fakes. प्रेजेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के यूज से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट सच एज डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी एंड मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू डीप फेक से रिलेटेड इश्यूज को डील करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जिस्टिंग लॉ सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं। व्हाट आर न्यू गाइडलाइंस? Ministry of Information and Technology recently unveiled the Indian AI Governance Guideline 2025, which provide a framework for safe, trustworthy, and responsible AI adoption. रिसेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन 2025 रिलीज की गई है, जो कि सेफ, ट्रस्टवर्थी एंड रिस्पॉन्सिबल एआई एडॉप्शन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। दीज गाइडलाइंस प्रमोट वॉलंटरी कंप्लायंस एंड टेक्नो लीगल सॉल्यूशन। ये जो गाइडलाइंस हैं ये वॉलंटरी कंप्लायंस एंड टेक्नो लीगल सॉल्यूशन को प्रमोट करते हैं। गवर्नमेंट एडवाइजरीज, कुछ गवर्नमेंट के एडवाइजरीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इससे पहले आ चुकी है। Ministry of IT has issued advisory in March 2024 requiring a large platform to obtain approval before deploying untested AI models and to label AI generated content to prevent bias and misinformation, especially during elections. इससे पहले मार्च 2024 में MEITY के द्वारा भी AI से रिलेटेड कुछ एडवाइजरी रिलीज की जा चुके हैं। स्पेशली इन एडवाइजरीज के अंदर लार्ज प्लेटफॉर्म को यहाँ पर किसी भी अनटेस्टेड एआई मॉडल्स को डिप्लॉय करने से पहले एंड एआई जनरेट कंटेंट को लेबल करने से पहले यहाँ पर अप्रूवल टेकिंग करना होगा गवर्नमेंट का, सो दैट मिस इन्फॉर्मेशन एंड बियास प्रिवेंट किया जा सके, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। की फीचर्स ऑफ इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस 2025। इन गाइडलाइंस की फीचर क्या है? इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट। यहाँ पर इनोवेशन पर फोकस किया गया है। द प्राइमरी फोकस इज टू बी अ फैसिलिटेटर ऑफ एआई डेवलपमेंट, अवॉइडिंग रिजिड रेगुलेशन दैट माइट हार्डल इनोवेशन, अनलाइक द यूरोपियन यूनियंस पर्सपेक्टिव एआई एक्ट। ये जो गाइडलाइंस हैं इन गाइडलाइंस का जो प्राइमरी फोकस है वो एआई डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करना है और कुछ रिजिड रेगुलेशंस को अवॉइड करना है जो कि इनोवेशन को हर्डल करते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क, ये जो फ्रेमवर्क यहाँ पर लॉन्च किया गया प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क है। गवर्नेंस इज गाइडेड बाय 7 सूत्राज और कोर प्रिंसिपल है। एआई गवर्नेंस अब 7 सूत्राज या कोर प्रिंसिपल के बेस पर गवर्न किया जाएगा। 7 सूत्राज: नंबर 1 ट्रस्ट, नंबर 2 पीपल फर्स्ट, नंबर 3 इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, नंबर 4 फेयरनेस एंड इक्विटी, नंबर 5 अकाउंटेबिलिटी, नंबर 6 अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, नंबर 7 सेफ्टी, रिलायंस, resilience and sustainability.
इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, द प्रपोज्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। अभी जो ये गवर्नेंस प्रपोज किया गया है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? नंबर वन, एन एआई गवर्नेंस ग्रुप, एक इसके अंदर एआई गवर्नेंस ग्रुप होगा। एन एपेक्स इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी फॉर पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए ये एक एपेक्स इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी होगा। नंबर टू, अ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी टू प्रोवाइड डोमेन एक्सपर्टाइज, डोमेन एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी होगी। Number three, an AI safety institute to focus on a technical safety risk research and setting standard। टेक्निकल सेफ्टी रिस्क रिसर्च एंड सेटिंग स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली फोकस करने के लिए यहाँ पर एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट होगा। स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन पर भी यहाँ पर फोकस किया गया। वेरियस सेक्टोरल बॉडी लाइक द आरबीआई, आईसीएमआर एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर डेवलपिंग देयर ओन एआई गाइडलाइंस टेलर्ड टू देयर स्पेसिफिक नीड। वेरियस सेक्टोरल बॉडीज सच एज आरबीआई, आईसीएमआर एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन सभी को अलाउ किया गया है कि वो अपनी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग अपने एआई गाइडलाइंस टेलर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।